Okay, first of all, I'm going to explain once again, explaining these six basic major points. Number one, the point number one is that there is the spinning of nucleons. Nucleon spins. I mean, protons is continuously spinning, neutron is continuously spinning, and if they are odd in number, then they are canceling the effect of their spinning, or they are canceling the effect of magnetic field made or produced due to their spinning. But if there is odd number of nuclei, then they are having overall residual spin. I mean, any nucleus, if it is having one proton or three proton n plus neutron, nucleon number three, nucleon number five, nucleon number seven. So their nucleus is generating or having tiny magnetic on it, tiny magnetic fields on it. That's is my point. And that magnetic field is the basis of this whole technique that is said to be are known as nuclear magnetic resonance spectroscopy. Basically, the major and main other points are that we apply the external field whenever we are having the sample of any compound, any molecule, let's suppose CH3, let's suppose just hydrogen gas molecule, let's suppose a big molecule, benzene ring, any alkene, we place them in a magnetic field. I mean, we are going to apply an external magnetic field on these molecule or on this hydrogen atom or carbon atom or any other atom. Whatsoever atom is present in that molecule, all atom will be under influence of the external magnetic field. But the magnetic field is adjusted like that magnetic field is going to influence the magnet of hydrogen, not the magnet of carbon, not the magnet of nitrogen, nor the magnet of any halogen. Basically, as far as this topic is concerned, we are concerned about the hydrogen's nucleus magnet. I mean, a tiny magnet made by the hydrogen nucleus. So, magnetic field is applied in such a way that it is going to disturb generally the magnet produced by the all hydrogen atom, those are present in that molecule. Next thing is when after application of the external field, external magnetic field, we shower the radio frequency radiation to that sample. Again, the basic purpose is to provoke the magnetic field, tiny magnetic field of the hydrogen atom to be against the external magnetic field. And finally, some of the radiations are absorbed, and these are the characteristics radiation. These are the characteristic informations about the different hydrogen present in that molecule. For example, if I'm going to examine CH4 molecule, that is having four hydrogen atom, all hydrogen atoms are same, all hydrogen atom are attached with the same carbon atom. So whenever I'm going to apply the whole procedure, then all four hydrogen atom, when they are going to be resonate, when they are going to be flip their direction, then they all will gain same type of frequency radiation, same type of wavelength radiation. So it means that all methyl group hydrogen, all hydrogens, those are attached with the simple carbon, they are called methyl carbon. For example, I am having a tertiary butanol that is having three methyl group, one OH group. So in this way, I mean, here are three CH3 group, and three CH3 group are identical CH3 group. These three methyl are identical to each other. They are 100% same. Their environment is same. Their neighboring groups are same. So these three methyl group and 9 hydrogen atom of the methyl group, they will gain, they will capture, they will absorb same type of radiation. But the OH group, hydrogen atom of alcohol group, will not absorb that radiation that was absorbed by the hydrogen of carbon. So ये एक difference है basically, or on the behalf of this difference
we are going to reconstruct, or we are going to construct the structure displayed formula or the structure formula of an organic compound or even any other NMR active covalent molecule. Now, that was the old part of my lecture. Today I'm going to explain further one. There are further different hydrogen atoms. Some hydrogen atoms in different organic molecule. Some are called shielded hydrogen atom, and some hydrogen atoms are protons. That's one and same thing. Hydrogen mean proton or proton mean hydrogen. Some are called de-shielded. Shielded and de-shielded hydrogen atoms basically absorb different type of radiation. So that is one of the basic bifurcation. I mean, a question arises in mind that why the OH hydrogen, hydrogen of alcoholic group, is going to absorb different radiation. Why the hydrogen that is attached with the carbon, it is going to absorb different frequency radiation. Why? What is the reason behind it? Why these two atoms are doing with the hydrogen? Because the hydrogen is same. H with N, H with O, H with Cl, H with carbon, they all are H. They all are hydrogen. So what is the reason behind it? On what grounds the same hydrogen, I mean, as far as the H itself is concerned, they all are having hydrogen atom. They are hydrogen, same element, but their absorbance, their radio frequency acceptance nature is not same. Why it's not same? So it is because of the group or atom attaching to it. If H is attached with oxygen, oxygen is electron withdrawing group. Oxygen snatches the electron towards itself. But if hydrogen is attaching with the carbon atom, it is not appreciably snatching towards it. If hydrogen is attached with the F, it is highly snatching group. It is snatching the bonding electron, HF bonding electron towards itself. So basically, if the electronegative atom is with hydrogen, it is, attracting, withdrawing electron towards itself, and it is going to make hydrogen less shielded or de-shielded. De-shield mean any atom that is basically, you can say, grabbing the electron, that is taking the electron away from the hydrogen. And any atom that is not withdrawing the electron from hydrogen, that is not snatching the electron from hydrogen, like carbon, like its own hydrogen itself, HH, if the two hydrogen atoms are making the bond, then they are called basically shielded hydrogen. So once again, in short, it's a very huge technique. It's a very complicated technique, you can say. And in short, in my simplest words, basically, if the hydrogen is attached with a normal carbon, with a simple like alkyl group, with any alkyl group, is called generally shielded hydrogen. If hydrogen is attached with oxygen, with fluorine, with nitrogen, especially with oxygen and nitrogen, and even hydrogen that is a part of benzene ring. You know, benzene ring contains 6 hydrogen atoms with it. So these 6 hydrogen atoms are said to be de-shielded hydrogen atom. Benzene ring also try to grab the electron from hydrogen atom. So nitrogen, oxygen, any atom that is attached with the oxygen atom, any hydrogen atom that is attached with nitrogen atom, with the benzene ring, are called de-shielded. I mean, in all these three, especially in these three cases, the hydrogen electrons, the original electron of the hydrogen, is basically shift away from the hydrogen atom, and this hydrogen atom experience the huge field or high magnetic field, external field on it. This hydrogen atom is going to remain under the more influence of the external magnetic field. But if the hydrogen is shielded, I mean,
an electron is revolving around the last shell of the hydrogen, electron is also generating a tiny spin, and I mean a tiny magnetic field. It's also spinning. Then is this hydrogen that is having shield of its own electron. It is called shielded hydrogen atom. So shielded hydrogen atom absorb different frequency radiation, and de-shielded hydrogen atoms absorb different radiation. There are the different points. Basically, if you want to write it over here, then yes, you can write it. You can note it down. So easy, it's not difficult. But there are the two type of hydrogen as far as the shielding is concerned. Some are called shielded and some are called de-shielded hydrogen. For example, there are some examples over here. The first one is methane. I told you this is the example, this CH4 methane example. It is also having shielded hydrogen atom. Same is the case, these hydrogen of CH3 group, as it's a methyl, similar as that of this one or in this one. So these all four groups, methyl groups, are having overall 12 hydrogen atom, and all these hydrogen atoms are shielded. They are having shield of their own electrons. But the hydrogen that is attached with the benzene ring are called de-shielded hydrogen. These two hydrogen, those are attached with the nitrogen atom, are called de-shielded, and hydrogen atom that is attached with oxygen, it is also said to be de-shielded. These are highly, shielded, 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 shielded. But these two hydrogen atom, this hydrogen atom, these 6 hydrogen atom are called de-shielded hydrogen atom. एक और चीज, हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या रीजन है, इसकी क्या वजह है, वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो सकता आपको समझ ना आई। अब हमारे पास जनरल स्पीकिंग एक हाइड्रोजन एटम है, वो कहीं पर भी लाई करता है, पड़ा हुआ है, और वो जब हम उसको बाहर के मैग्नेट के अंदर रखते हैं, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेनेवर वी आर सपोज्ड टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने कल आपको बताया था वो अपनी स्पिन चेंज करता है। 2 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उसकी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो इधर इट इज गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज गोइंग टू अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 2 ऑप्शन हैं आपके पास। दुनिया का कोई हाइड्रोजन और खाली लोन हाइड्रोजन एटम हो, या वो कार्बन के साथ लगा हो, एन के साथ लगा हो, या ओ के साथ लगा हो, या बेंजीन रिंग के साथ लगा हो, हर हाइड्रोजन एटम के जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली उसकी डायरेक्शन या तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिल जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या उसकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगी। ये 2 काम होने हैं। फिर जब पैरेलल हो जाएगी तो हम बाहर से क्या करते हैं, उसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी को शावर करते हैं, फेंकते हैं रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या करती हैं, जो पैरेलल पॉपुलेशन है ना, उनको प्रोवोक करती हैं, उनको फ्लिप करती हैं, उनको अगेंस्ट लेके जाती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो जो फ्लिप करेगा ऑब्वियसली वो बाहर से एड लेगा, बाहर से एनर्जी लेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, उसमें एनर्जी आएगी, तब इट विल गो अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, जो खाएगा, जो पैकेट रेडिएशंस के वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे पता चलता है कि ये O के साथ वाला हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन है, ये N के साथ वाला, वो सब की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है। उसकी एक रीजन शील्डिंग, डी शील्डेड या शील्डिंग डी शील्डिंग भी है। जो शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होता है। अब उसको फ्लिप करने के लिए, वापस लेके आने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, एंड सो ऑन। बस इस टॉपिक को इतना ही याद रखें, इससे ज्यादा आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। जनरली ये पता होना चाहिए
कि शील्डेड और डी शील्डेड जो हाइड्रोजन होते हैं, दे आर सपोज टू गेन डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी। उनकी जो सिग्नल्स आते हैं, जो पीक्स आती हैं, एक वर्ड यूज करूंगा मैं आगे चल के, पीक्स, जो उनकी पीक्स होती हैं वो बेसिकली डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट पीक्स क्यों आती हैं? क्योंकि देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, सम आर शील्डेड, सम आर डी शील्डेड। तो उनका आपस में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, दैट इज आल्सो ऑन बिहाफ ऑफ शील्डेड एंड डी शील्डेड। नेक्स्ट थिंग इज टीएमएस। मैंने लिखा भी हुआ था यहां पे, टाइम टेट्रामिथाइल साइलेन। ये साइलेन है, इसके बाहर 3 मिथाइल चार सॉरी सॉरी 4 मिथाइल ग्रुप लगा दें। टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन को साइलेन बोलते हैं। ये बिल्कुल इट्स एक्टिंग लाइक अ अल्केन, कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, उसी ग्रुप का मेंबर है सिलिकॉन, यू नो। ये एक रेफरेंस मटेरियल होता है। मुझे उस मशीन पे काम करने का मौका मिला है इस्लामाबाद के आज़म यूनिवर्सिटी में। उस मशीन के अंदर जब भी कोई नया सैंपल रन करते हैं, चलाते हैं उस मशीन को, तो उस मशीन को एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले उसमें से टीएमएस पास करते हैं, टेट्रा मिथाइल साइलेन। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, इट इज स्टैंडर्ड सैंपल और इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द मशीन। अब उस मशीन में से 12 हाइड्रोजन एटम और सारे के सारे शील्डेड, ये 12 हाइड्रोजन हैं और सारे शील्डेड हैं। मशीन उसको सेंस करती है और उसको रेफरेंस के तौर पे एक जगह पे एक पीक बना देती है, एक पॉइंट मार्क करती है। यानी इसके बाद जब आप दूसरा कंपाउंड रन करेंगे, मशीन विल टेक अ कंपैरेटिव लुक विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, कि उसके हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन से कैसे मुख्तलिफ हैं, क्या डिफरेंस है उनमें। तो बेसिक डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बोला है, पूरा पहला जो लेक्चर तो आपको सुनाया है, वो यही है। बेसिक डिफरेंस होता है शील्डिंग और डी शील्डेड का, कि जो इस जैसे हैं वो इसी के साथ अपना सिग्नल शो करेंगे, और जो डी शील्डेड हैं, आई मीन जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन या एसिडिक ग्रुप वाले हैं, वो अपना सिग्नल इससे दूर करके शिफ्ट कर लेंगे, अपने आप को इससे दूर जाके अपना सिग्नल शो करेंगे। ये सिग्नल एक पेपर के ऊपर एक प्रिंट आउट की फॉर्म में आता है। इसके अंदर बेसिकली सिर्फ वाई एक्सिस होता है, आई एम सॉरी एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस नहीं होता। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो यहां पैरामीटर्स होते हैं उसको बोलते हैं पीपीएम। इसको केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ये सिंबल है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा। तो ये बेसिकली इट्स कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अगेन सिंपलेस्ट वर्डिंग बता रहा हूं, एक्चुअल बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल बात, ये टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट है। एमआरआई मशीन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे। सेम यही चीज है, वो इंसान के जो सेल्स हैं उसको चेक करती है, उसके साथ सेम यही ट्रीटमेंट करती है, लेकिन उसकी पिक्चर डेवलप करती है। लेकिन हम जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो हम एक इस मशीन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आई मीन एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट बट द बेसिक मैकेनिज्म इज सेम। उसका वो भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, वहां पर भी यही काम होता है सेम। और इधर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वही काम करते हैं। उसका इमेज नहीं लेते, उसका स्ट्रक्चर बना ड्रा करते हैं या बनाते हैं, उसी टेक्निक की बेस पे जिस पे आप एमआरआई जो है वो काम करता है, ये लेते। उसके बाद अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसको आप सैंपल में ऐड करना चाहते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में ना हो, यानी इस मशीन के अंदर इस सैंपल इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में एनएमआर में लिक्विड सैंपल डालते हैं। अगर आपका सैंपल सॉलिड है तो ये मशीन काम नहीं करेगी, उसको एनालाइज नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, उसको लिक्विड की फॉर्म में लेके आना है। लिक्विड की फॉर्म में लेके आने के लिए आप ये वाला सॉल्वेंट यूज करते हैं, और ये सॉल्वेंट ड्यूट्रियम आइसोटोप के साथ यूज करते हैं, CdCl3 यूज करते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन है ये भी, लेकिन इसमें डी यूज करते हैं क्योंकि डी ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम एनएमआर इनएक्टिव है, तो ये सॉल्वेंट खुद से इंटरफेयर नहीं करता, अपनी कोई प्रेजेंस, अपनी कोई पीक, अपना कोई सिग्नल नहीं देता वहां पे। और इसके अंदर आप कोई भी सॉलिड
को जो है नॉर्मली तमाम जितने भी सॉलिड हैं वो इसमें सॉल्युबल होते हैं, तो बेसिकली इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। टीएमएस टेट्रामिथाइल साइलेन को एज अ स्टैंडर्ड मटेरियल और स्टैंडर्ड सैंपल यूज करते हैं। हम मशीन को एक रेफरेंस देते हैं कि आप ये आपका क्राइटेरिया है, ये मेरिट है, ये 12 हाइड्रोजन है, इसके बाद आने वाला दुनिया का कोई भी हाइड्रोजन है उसको आपने इसी से कंपेयर करना है। मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, वैसे मेरी अपनी बात है, ये जो आजकल आपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये एनएमआर मशीन जितनी भी हैं, ये जितनी भी इवन अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये सारी एआई टूल्स पे ही बनाई गई थी। देखिए, एक कंपैरेटिव मेथड है जो कि एआई भी यही यूज करता है। आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो डिफरेंट डाटाबेस से कंपेयर करता है उसको, दो क्वेश्चन है, दोनों के डाटा लेता है, फिर उनके दरमियान डिफरेंस है तो डिफरेंस कंपेयर करता है, सिमिलरिटी है तो सिमिलरिटी देखता है। ये भी वही चीज है, वो ये देखता है कि ये नया आने वाला कंपाउंड पहले से कितना मुख्तलिफ है, उनको प्लेस करता है, इसकी क्वांटिटी कम है, ज्यादा है, कितनी है, उसी हिसाब से सिग्नल या पीक देता है। जैसे ऑलमोस्ट सिग्नल आपने देखे होंगे, जिस तरह उसके क्या कहते हैं उसको, सिटी स्कैन, या सिटी स्कैन कहते हैं, नहीं नॉट नॉट सिटी स्कैन, नहीं प्लीज, जो हार्ट बीट वगैरह दिल के डॉक्टर्स पहले वो करवाते, इसी चीज सिग्नल, सॉरी, इसी चीज जो ग्राफ होता है तकरीबन ये भी वही सिग्नल्स होते हैं, उस तरह के होते हैं, सो ऑन। तो उसके ऊपर भी बाद में हम बात करते हैं। जनरली बेसिक इसकी जो मेजर मेन पॉइंट्स हैं वो यही थे। अब नया एक पोर्शन में पढ़ाने जा रहा हूं, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी तक जो मैंने आपको बोला है ना, दैट वाज बिहाइंड द सीन। मशीन क्या करती है, मशीन का प्रिंसिपल क्या है, उस सैंपल के अंदर जो हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया जाता है, या हाइड्रोजन के साथ जाके जो बाहर की रेडिएशन है, या बाहर का मैग्नेट, जो मैग्नेट है, वो एच को किस तरह चेंज करता है, या उसकी हायरार्की बदलता है, या उसकी आई मीन पोजीशन बदलता है, एनर्जी बदलता है, वो मैंने सारी कहानी आपको सुना दी है। जनरली इस कहानी से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर आपको ये कहानी पता ना हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पूरी तरह नहीं आएगी। ये दैट इज 101% कंसेप्चुअल टॉपिक, इसमें रट्टा नहीं लगा सकते आप, इम्पॉसिबल है, मोर देन दैट ऑफ इम्पॉसिबल। तो आपके दिमाग में जब तक वो स्टोरी, वो कहानी नहीं होगी ना, कि ये इसके साथ ये सलूक होता है, इसलिए हाइड्रोजन अपनी डिफरेंट हाइड्रोजन अपने पीक्स डिफरेंट देते हैं, ये कंपाउंड के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन हैं वो डिफरेंट जगह पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तो उस वक्त तक आप ये जो नेक्स्ट है इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट फेज दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन, NMR। हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन या प्रोटॉन, NMR मीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके 4 पोर्शन है, आप नोट डाउन कर लें अपने पास, और आपने आज के बाद कभी भी कोई भी स्पेक्ट्रम हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पास पेपर क्वेश्चन में पूछें, तो आपने ये पॉइंट्स लगाने हैं जो मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले जो आपके पास पिक्चर आएगी, अगर पिक्चर गिवन है तो उसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, पीक्स कितनी आई हैं। मैं आगे चल के बताता हूं कि पीक्स किस शक्ल की होती हैं, कैसी होती हैं, और वो जितनी भी पीक होंगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। नंबर ऑफ केमिकली यूनिक हाइड्रोजन्स कितने हैं उस सैंपल में। अब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपने ये चेक करना हो, एनएमआर स्पेक्ट्रम उसका लेने से पहले अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए और वो एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताएं कि अगर उस मशीन में से इसको मैं गुजारूं तो इसके कितने सिग्नल्स आएंगे, कितनी पीक्स आएंगी, तो वो उनको हम टोटल नंबर ऑफ पीक्स कहते हैं। वो कैसे मालूम करते हैं, देखते हैं। मेरे पास एक छोटा सा अल्केन है और इसको मैं बुलाता हूं ईथेन, दैट इज कॉल्ड ईथेन। आपने किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ लेना है, राइट से या लेफ्ट से, टॉप से या बॉटम से, जो आपको दिख रहे। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू टेक दिस हाइड्रोजन, एक कार्बन के हाइड्रोजन जो एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों। क्यों, ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स मुराद जी जुड़वा तिरवा भाई हैं, बिल्कुल सेम है। दे आर 110% सेम आर सिमिलर, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये।
इनमें कोई फर्क नहीं है। अब देखना है क्या इस तरह के कोई और भी हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर? यस, ये भी हैं। ये CH3 के हाइड्रोजन है और इनके नेबर में भी एक और CH3 खड़ा हुआ है। अगर मैं इनको बोलता हूं कुछ देर के लिए, दीज आर ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन, आप भी ए टाइप लिख सकते हैं। एक कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को आप नॉमिनीज खुद से दे सकते हैं। ये ए टाइप के मैंने क्यों बोले हैं? क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच हैं, एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं और ये सेम है। अब देखते हैं कि इसके जो साथ वाले ग्रुप खड़ा है 3 हाइड्रोजन का, एक ग्रुप ये था, वो ग्रुप इनसे डिफरेंट है या नहीं, इनसे मुख्तलिफ है या नहीं, इससे यूनिक है या नहीं, ये आपने देखना है। तो बेसिकली आपने यहां पर इसको गौर से देखें, तो गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये डिफरेंट नहीं है, ये भी तो सेम टाइप के, ए टाइप के। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन टोटल 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। दे ऑल आर 100% सेम। पहले तो देखना है ये 3 है, ये वाले भी 3 है, ये भी 3, इसके नेबरिंग हमसाए भी 3, और फिर ये भी एक कार्बन से अटैच हैं, ये भी एक कार्बन से अटैच हैं, और वो एक दूसरे के नेबर्स भी हैं। तो ये दे आर 100% आइडेंटिकल, ये बिल्कुल सेम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, जब आप NMR स्पेक्ट्रम का प्रिंट देंगे तो ये सिर्फ एक सिग्नल, एक पीक, तकरीबन इसी तरह की होती है पीक, रफली यू कैन से, ऊपर से बिल्कुल एक पतली लाइन होती है और नीचे से ब्रॉड होती है, तो एक सिग्नल ये शो करेंगे। और ये 6 के 6 हाइड्रोजन जो होंगे ये मिल के एक ही तरह की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे और एक ही जगह पे अपनी प्रेजेंस, अपनी पीक शो करेंगे। अब इसके कॉन्ट्रेरी टू दैट, आई मीन एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको वापस करने जा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने और चीजें भी आपको दिखानी है। मैं इस वक्त आपको प्रोपेन, एक कार्बन हाइड्रोजन की पीक्स चेक करते हैं, नंबर ऑफ टोटल पीक्स कितनी आएंगी। पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, पहला क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला गिवन है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी। हाँ, अगर ग्राफ गिवन है तो फिर तो वो गिवन है। देखें मेरे पास प्रोपेन है और आपने हर दफा कोशिश करनी है कि उसका डिस्प्लेड फार्मूला लिखना है, कंडेंस लिख दें या ये वाला डिस्प्लेड लिख दें, इन दोनों में से कोई आप लिख सकते। किसी भी ए ग्रुप को आपने हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन मार्क करने हैं, ए ए, किसी एक ग्रुप को आपने मैं जैसे मैंने पहले बोला मार्क कर दिया। अब अगर गौर से देखें, सेम इस तरह का कोई मिथाइल ग्रुप जिसके नेबर्स में C हो और 2 हाइड्रोजन हो, यानी इसकी इस पूरे ग्रुप के, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप माने इसको 3, आई मीन ग्रुप ऑफ 3 हाइड्रोजन, और इसके नेबर में क्या है, CH2 ग्रुप है। कोई और इस तरह का मिथाइल ग्रुप, डिटो कॉपी, आइडेंटिकल ग्रुप है दूसरे एंड पे। दूसरे एंड पे? यस, बी, बी एंड बी। फिर ये ABD के हैं। क्या मैंने बी लिखना चाहिए या ए लिखना चाहिए? आप लेट हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सॉरी। क्या मुझे बी लिखना चाहिए या इसको भी, इनको भी ए लिखना चाहिए? मेरे ख्याल से फिर बी इनको भी लिखना A चाहिए। लिखना चाहिए। इनको भी ए लिखना चाहिए, एग्जैक्टली। सो क्यों? ये तो आइडेंटिकल है। अगर वो ए है तो ये क्या होंगे, ये भी ए होंगे। अब देखिए जो दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये बाकी ए से डिफरेंट है या नहीं? डिफरेंट हैं सर। डिफरेंट है, तो इनको मैं बी, बी आपस में सेम है। एक ही एक ही कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सेम कैटेगरी होगी, या तो वो दोनों तीनों बी होंगे या दोनों तीनों सी होंगे या ए होंगे। तो अब देखिए कितने डिफरेंट टाइप के यूनिक हाइड्रोजन कितने हैं, डिफरेंट ग्रुप कितने बने हैं हाइड्रोजन के ऑन बिहाफ ऑफ दो देयर एनवायरनमेंट।
दो, एग्जैक्टली। तो इसकी दो पीक्स आएंगी, दो सिग्नल इस तरह के आएंगे। रेंज कहां पर होगी, किस नंबर पे आएंगे, नंबर 1.7 या 9 होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस कंपाउंड को अगर आप उस मशीन में से पास करेंगे तो बेसिकली दो पीक्स आएंगी। एक और चीज देखते हैं। यस, इनके अंदर बड़ी पीक वही होगी जिसके अंदर बड़ी छोटी का अभी नहीं पढ़ाया मैंने, सॉरी। बड़ी छोटी का ठीक नहीं, होगी। कोई बात नहीं की। सुकून से बैठो। एक यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं, वैसे मुझे थोड़ा सा आप प्लीज टाइम दीजिएगा। अभी हम आज पहले पॉइंट की ही प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि क्या आप ये पहचान कर सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन आर यूनिक, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो हियर इट इज। मेरे पास CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड CH3 एंड CH3। टोटल 4 कार्बन है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है। कितने टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन्स, आई मीन हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर? टू दो तरह के नहीं होते? जी, दो होंगे सर, दो। तो बोदला। सर ये टू। सारे ए, ये ए गुड, और ये वाला भी बिल्कुल सही है, 2 ग्रुप, शाबाश। एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, देखते हैं कि आप उसमें, वैसे इजी है, मुश्किल सर तो मैं नहीं भी है वो। बोल रहा था, मैं भी शाबाश शायद डिजर्व करता हूँ, नो, शायद। बिल्कुल नहीं डिजर्व करते आप, किस किस लिए सर? लेट आने की वजह से। सर इसके अंदर भी दो हैं। हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोजन्स आर देयर, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन, सर यूनिक हाइड्रोजन्स आर सर देयर? दो सर, ये दो, दो एंड वाले ए मिथाइल ग्रुप टाइप, और CH2 ए के दो टाइप, करेक्ट, बी टाइप। बी। तो इसकी भी दो पीक्स आएंगी। अब जाहिर है इनकी पीक सेम तो नहीं हो सकती ना, हालांकि ये सारे दो 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 पीक दे रहे हैं। किसी में हाइट का डिफरेंस होगा, किसी में थोड़ा सा नंबर का डिफरेंस होगा, वो बाद में पढ़ेंगे कितना, कब, कहां, कैसे डिफरेंस होगा। लेकिन जनरली आपने पहला स्टेप ये होता है कि नंबर ऑफ पीक। अब हम एक अल्कोहल आखिर में जाते जाते, अल्कोहल जो आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, भाला हुआ है, एथेनॉल, इसमें सर इसके तीन कितने होंगे। टाइप तीन के हाइड्रोजन हैं? तीन। गुड, 3। ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप और ये सी ग्रुप। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं, सबके सेम नहीं होंगे, एक ग्रुप, एक ग्रुप। सबका ए जी, ग्रुप। यस। यस, ए ग्रुप सारे एक जैसे हैं। तो उनके नेबर्स खुद और उनके नेबर्स आपने चेक करने हैं। अगर वो सेम है तो समझ लें कि उनका नंबर ऑफ पीक्स, सिग्नल, वो सारे मिल जाएंगे कलेक्टिवली। अब जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर ये लिखा था, इसके अंदर यहां पर देखें तो ये 9 हाइड्रोजन मिलके एक सिग्नल या एक पीक देंगे, 9 हाइड्रोजन्स, क्योंकि वो एक जैसे हैं, वो एक ही जगह पे अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कल ऑनलाइन या फेस सर टू फिजिक्स फेस, इसको रिवाइज कीजिए, होपफुली इंशाल्लाह आप बेहतर फील करेंगे। सर